all of us in this room, I am also concerned about Bhopal and its future. And having seen the presentations from my friends Savita ji and Sharma ji, one is feeling furthermore depressed and quite this thing that what kind of city they had created, our ancestors, and what is the city is going to be in if what the Chief Minister, Honorable Chief Minister is saying, and what are the things that we are going to see if we are not if you are not going to protest and if you are not going to show our might, whatever little it has been with us. Because as Naidu Sahab said, or before that the Chief Minister had suddenly announced that all the illegal colonies in Madhya Pradesh between 2016 and 2022 would be legalized and building permission etc. is also not required. So now the question, there are many questions about it, whether we actually require a municipal commissioner or the act that governs the municipal areas. Do we really require the town and country planning organization? Do we really require all regulatory authorities which actually regulate the urban planning and ensure that the cities remain livable and habitable? And Bhopal has been really a good city, and 3 days ago I was with large number of tiger experts who had come from all over the country in Bhopal, and they were here for the National Tiger Conservation Authorities meeting, and we got together at a small meeting, and then we went into the tiger areas, and they were all amazed to see that Bhopal has so many tigers, and Bhopal is protecting the forests and the environment which is required for the sustainable use of the wildlife. But at the same time, everyone was also reminded of the fact that the green areas, the green lungs of Bhopal in and around Kaliasot and Kerwa Dam or Kathotia forest ranges and areas which lie in the catchments of Upper Lake and also into the adjoining areas of Sihor district, that they are all under threat because of the huge legal and illegal colonization, and mainly by the very, very powerful people of the city who are only thinking of themselves and not others. And that is why what is happening is that the green cover is very rapidly dwindling, and now with this new threat of illegal colonies, my office is on the on the link road number 3, and we have got a terrace, and behind that when I see huge amount of jhuggies lined outside the hills of Manit and running towards the Kolar road area. And multi-storied buildings have been hutments or dwellings have been constructed right behind the Sapre Sangrahalaya, sir. And it gives you a look of exactly what we see in Dharavi, where I have been many times, and there are illegal dwellings just a kilometer away from where the seat of power sits, that is Vallabhavan. So the Chief Minister also goes there. Recently the Chief Minister had gone to that illegal dwellings called Bhimnagar for Ladli Behna scheme to launch something. So he has actually legitimized the illegal dwellings. I am not against giving the residential pattas or residential rights to the downtrodden or those below poverty line, but there has to be a policy, and that is what has actually shocked all of us, that when the Chief Minister has said that अवैध को ही मैं खत्म कर दूंगा और अवैध ही को ही वैध करना है, तो यदि अवैध को ही वैध करना है तो वो सिर्फ कॉलोनीज के मामले में वो चाह रहे हैं कि या चुनाव आने तक वो कहेंगे कि अवैध वन कटाई को भी वैध कर देंगे, या सो नाउ मेनी कॉलोनाइजर्स whom I have been speaking to, they are saying कि हम लोगों ने पिछले 10 सालों में अलग अलग जगह परमिशन लेने के लिए लीगल और इलीगल तरीके से जो पैसा दिया, और 1 एकड़ के लिए करीब 25 लाख रुपए की वैध फीस है, और MPB का ट्रांसफार्मर लगाने वगैरह के लिए जो खर्चे आते हैं, उन चीज़ों का क्या होगा। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही कि पिछले 10-15 सालों में जिन लोगों ने गलत परमिशंस दी
उन लोगों को भी देखना चाहिए। तब उसमें कौन गलत, किसने परमिशन दी, तो उसमें मेयर्स आते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट आते हैं, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आते हैं। तो मध्य प्रदेश के 15-20 बड़े शहरों के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कोई एक्शन होने वाली है? और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके आगे से कुछ अवैध निर्माण नहीं होगा, बट दिस इज एन ओरल ऑर्डर। और अभी तक आई एम अवेटिंग दैट ऑफिशियल रूल्स रिगार्डिंग दिस, बिकॉज इन 2016 when such an announcement was made, somebody had gone to the Gwalior High Court and the order was declared ultra vires, and therefore people are waiting for an official gazette notification or the order from the state government about how they are going ahead with that, because it is not only legalizing all the irregular hutments or residential colonies, but also the government has announced that all their maintenance charges and electricity etc. would be borne by the state government, which means, in other words, those who have been doing all the legal things, those who have been observing all the rules and regulations, they have been paying taxes like you and I and many others. So they have been actually befooled by the government if this kind of an announcement comes onto the ground, and therefore illegal structures coming up as legal structures as declared by the Chief Minister is a huge threat to the urban planning of Madhya Pradesh, and therefore there has to be a strong voice against what the government is doing. The government is very much well within its rights to do whatever it can, but if something is ruining cities like Bhopal, we are sitting in Bhopal, but there was a reference to Indore also by Naidu Sahab. Indore also has become an adda of land mafia, and the land prices in Indore are skyrocketing because of various reasons. It is also a commercial capital of the city. It has large number of flights coming in and out of Bhopal. It is closer to Mumbai, but a sense of possession in among Indore citizens is seen compared to what we see in Bhopal. भोपाल में डॉक्टर कपूर रीवा से आए हैं, नायडू साहब शाहजहाँपुर से आए हैं, डॉक्टर अग्रवाल छत्तीसगढ़ से आए हैं, मैं इंदौर से आया हूँ। तो सेंस ऑफ पोजीशन जो है इंदौर में, वो भोपाल में कई बार नहीं दिखता है। दिस इज थैंक्स टू शशिधर कपूर दैट ही हैज गॉट दिस ग्रुप टुगेदर। लेकिन हमको आज जो अलग अलग CSOs जो इंदौर में भोपाल में काम कर रहे हैं या बाकी शहरों में भी काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इलीगल कॉलोनीज और लेजिटिमाइजिंग और रेगुलराइजिंग इलीगल कॉलोनीज इज नॉट ओनली अबाउट भोपाल, इट इज ऑफ एंटायर मध्य प्रदेश। एंड इफ दिस इज अलाउड, then I think many more state chief ministers will also start doing this thing in different cities, and we have seen 2018 में भोपाल के मेयर सैफिया कॉलेज के पास में जब बहुत पानी बरसा था तो उसमें कुर्सी डालकर बैठ गए थे। इफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी and who has all the powers, if he was sitting there in the waterlogged areas demanding the PWD to work and clean up the area, तो उससे पता लग सकता है कि हम एक तरफ हम देख रहे हैं कि भोपाल की बेगमों ने या भोपाल के पूर्व शासकों ने भोपाल को कितना सुंदर बनाया था। एक ज़माने में तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था और सीहोर डिस्ट्रिक्ट था, और भोपाल वहाँ से जो उसकी जो जर्नी शुरू हुई है, सो आर्किटेक्चरली इट हैज़ बीन वेरी गुड सिटी, इट वाज वेल प्लान्ड। हमको बार बार एम एन बुश साहब की याद आती है, ही वॉज द रियल शेपर ऑफ द न्यू भोपाल। लेकिन उसके बाद भी अब यदि स्थितियाँ इस तरीके से बदलती जाएंगी तो उसका विरोध करना पड़ेगा और अल्टरनेट मॉडल देना पड़ेगा। मैंने बुश साहब से बहुत दिनों तक, जब मास्टर प्लान नहीं आ रहा था, तो बुश साहब से मैंने दैनिक भास्कर के संपादक होने के नाते एक अलग से मास्टर प्लान उनसे मैंने बनवा के 2 पेज फुल ब्रॉडशीट में we had published it as an alternate option because government was doing, and now what we see is that for last 25 years there is no master plan and people are not much worried about it. So the idea of various forums, ideas of various journalists or newspaper publications, groups is to protect our own rights, because कल की तारीख में, कल आपने कोई, मैंने बोला एक इंटरव्यू में कि कल यदि श्यामला हिल्स पर झुग्गी झोपड़ी आ जाती है तो क्या ये वैध होगी या इसको अवैध करारा जाएगा। तो यदि किसी ने प्लानिंग के तहत यदि एक बिल्डिंग बनाई, या हम अरेरा कॉलोनी को देखते हैं विच इज सेट टू बी सो वेल प्लान्ड, या हम शिवाजी नगर और तुलसी नगर को देखते हैं, हम उनकी बैकलेन्स को देखते हैं कितना सुंदर उस जमाने में वो किया। तो वहीं पर स्मार्ट सिटी आने वाली थी, उसका हमने विरोध किया उस समय तत्कालीन। उस समय मिसेज निर्मला भट्ट भी हमारे साथ आई थी और we did the tree walk and everything,
और फिर वो जाने के बाद पता लगा, जैसे अभी सविता जी ने भी कहा कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द स्काईलाइन ऑफ द सिटी, नोबडी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो हमको जो मिनरेट्स दिखती थी उसके बीच में ही हमीदिया हॉस्पिटल नया बन गया और हम यहाँ से देखते हैं तो वहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि, और जब ये संयुक्त प्रयासों से जब शिवाजी नगर तुलसी नगर में बहुत पेड़ कटने वाले थे, इसलिए स्मार्ट सिटी की लोकेशन बदलवाई, वो संबंधित अधिकारी अब भोपाल में नहीं रहे, वो दिल्ली चले गए अब। तो वो शिफ्ट होने के बाद वो आ गई न्यू मार्केट में, और वहाँ पर पलाश के सामने आपने देखा होगा कि वापस भी दड़बे बन गए हैं, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम। सो आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट ये बात दुख की बात ये है कि जो काम आर्किटेक्ट्स को, अर्बन प्लानर्स को और SPA या TNCP के संबंधित जो इस डोमेन के एक्सपर्ट्स है उनको करना चाहिए, दैट हैज बीन एक्चुअली usurped and hijacked by IAS officers, and therefore what we are seeing is that the issues of urban planning have been handled more by collectors and the IAS officers than by the technical experts। तो उसके बारे में भी हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इस तरीके के फोरम जो भोपाल इंटरनेशनल सेंटर जो आगे बनने वाला है, अभी इन द बिगिनिंग जो बेबी स्टेप ले रहा है, तो इस पर समय समय पर अलग अलग लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने तो उठाई है, बाकी सब लोगों ने भी उठाई है निश्चित रूप से, लेकिन इस तरीके का यदि इलीगलाइजेशन हो, इलीगल चीज़ों का यदि अप्रूवल सरकार करने जाएगी तो फिर लोग किसकी तरफ अपनी आंखें उठाकर देखेंगे कि वो कैसे शहर बनेंगे, कैसे बसेंगे। बिकॉज लोग कहते थे कि नेहरू जी ने जब फ्रेंच आर्किटेक्ट को लाकर चंडीगढ़ बसाया, या उसके पहले टाटा ने जमशेदपुर बनाया, तो लोग आज कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ तो वो स्मार्ट सिटीज़ थी जिनको जमशेदपुर या चंडीगढ़ को बसाया गया, और उसके बाद अब जो स्मार्ट सिटीज़ के नाम पर जो बात चल रही है वो सिर्फ रेट्रोफिकेशन, और दूसरी बार यहाँ से उठाकर चीज़ों को जो पेड़ लगाए स्मार्ट सिटी ने उसमें से 90% का सर्वाइवल नहीं हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्मार्ट सिटीज़ वी आर लुकिंग एट, व्हाट काइंड ऑफ स्मार्ट सिटीज़ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, और किस तरीके से हम हमारे ही हेरिटेज को ख़त्म करके एक नई ऐसी चीज़ बना रहे हैं। आपने न्यू मार्केट में देखा होगा कि वो मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग जो किया गया है, नॉट वन व्हीकल गोज एंड गेट्स पार्क देयर। सो व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट इज मेकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर अलाउिंग देम टू मेक इट। तो अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय तरह तरह की अनाउंसमेंट होती है, लेकिन सबसे भीषण और सबसे गंभीर जो अनाउंसमेंट हुई है, जिसके बारे में अभी हम सब लोगों ने कहा, तो इसके बारे में जो टाउन एंड कंट्री टाउन प्लानर्स एसोसिएशन है उन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, आर्किटेक्चर काउंसिल के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया में लोगों को लिखना चाहिए, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स इफ दे आर अलाउड टू हैपन तो फिर इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि मैंने कहीं बोला है कि फिर सारी अवैध चीज़ें, फिर वन वे में से घुसना अवैध हो जाएगा, क्राइम जो अवैध है वो वैध हो जाएंगे। हम किसी भी तरीके से, कल आज की तारीख में हम यदि भोपाल ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, उसमें यदि बिना टिकट यात्री कोई चल रहा है और यदि उसने आपकी बर्थ पे कब्जा कर लिया, तो बाकी जिन लोगों ने टिकट खरीदा है उन लोगों में और जो बे टिकट यात्री उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अवैध और वैध के बीच का यदि अंतर ही खत्म हो गया तो हमारा जो समाज है वो किस रसातल में जाएगा, इसके बारे में हम सब लोगों को चिंता करना पड़ेगी। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन इश्यूज एंड अर्बन प्लानिंग, देयर कम्स ए चैलेंज एज फार एज द अनाउंसमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न। बट हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बुरहानपुर में भयंकर जंगल कटाई हुई, 500 हजार की संख्या में लोग गए, उन्होंने ओपनली वो पेड़ काट दिए और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। वहाँ कलेक्टर SP ने कुछ किया नहीं और वहाँ का यंग जो DFO था ही वॉज ट्रांसफर्ड, बट कलेक्टर एंड SP वेयर नॉट टच्ड। तो ये जो सारी चीज़ें हमको दिख रही है, मैंने थोड़ी देर पहले टाइगर का भी उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे ऑफिशियल्स वहाँ पर आए थे एंड दे वर अमेज्ड हाउ टाइगर्स एंड पीपल आर कोएग्जिस्टिंग इन भोपाल एंड दे the urban tiger management model is being talked about at the national level। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो ये गड़बड़ियाँ हो रही है उसके बारे में भी देश भर में जानकारी जाना चाहिए और उसको रोकने के हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए घातक होगा। और आज से 10 साल से 20 साल बाद का जो भोपाल होगा वो कितना खराब होने वाला है, या इंदौर कैसा होगा, ग्वालियर कैसा होगा, उज्जैन कैसा होगा। तो वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज ए पॉपुलेशन प्रेशर, बट since there is a pressure of population, we need more stringent laws and we require more people to observe that and protest if something is going wrong. Thank you very much.